जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 543rd एपिसोड ऑफ लाइव मार्केट एनालिसिस. So today, being Sunday, we are going to do the weekly analysis of all asset classes. We will start by talking about global markets. We will cover Forex, commodities, cryptos, Nifty, Bank Nifty, and towards the end of the session, we will take all of your stock queries. So welcome, good evening, namaskar. I hope all of you are doing good. And जय माता दी, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं. And before I proceed, let me just remind you guys that the next training is scheduled on April 16th and 17th. So if you are interested in learning from us, you can WhatsApp and you can join, you can register. And once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 3 months where you can ask all your feedback, doubts, and day to day market discussion. We share a lot of insights into the real time market analysis so you can benefit in multiple ways. So today is 3rd of April, so we will be locking the registration by 10th, so please register at the earliest. And do subscribe to our this channel. It's a new channel. The old channel still stands as it is, and you can also follow us on Instagram. Chaliye, let us start today's session. So first, let us see what happened on Friday. And at the outset, let me tell you that we were highly bullish on Friday morning itself. I messaged to group members that we are going long on Nifty and Bank Nifty. And what a stupendous rally! What a huge rally in both the indices. The Bank Nifty almost jumping from 36,400 level to all the way 37,200. What a huge rally! And the same for Nifty. Intraday complete 200 points rally without a shadow of doubt, without any pullback. If you look at the intraday chart, never the candle closed below the VWAP. So it was a very beautiful trend day, and this was very, very, very much anticipated, and we had discussed all these things. You must definitely go and watch, I think, Tuesdays or Wednesday video. You should save that video where I discussed how the markets will behave once we have crossed the mob level of 17,350, and the result of which we saw on Fridays in the Friday session. So let us continue the discussion. Namaskar, good evening. कुछ लोग अभी भी जुड़े हैं. So on Friday, we can see that S&P 500, it has started some correction from very mentioned level of 4650. If you remember, this entire zone is a trouble area for the US market, for the S&P 500, and we spoke very clearly as to how to look for some reversal. So if you recall, we said that the S&P 500 is maintaining the previous day's bottom, and whenever it breaks this pattern, which is on this day, you see there was an inside bar and then there was a break. Now this is a very nice short sell signal. So on any rise you can short the S&P 500 from a short term perspective. Now overall, I believe the US market can still try to make one more slight new high somewhere here, but I don't think US market is going to cross 4680 without undergoing a significant correction. So I think somewhere from here, positionally speaking, the US market should roll down, and once again we can see some decent correction right till 4280. So just like this leg, we can again see a similar correction from 4650 area. This may be already a top, but we cannot rule out the possibility of one more round of just an up move just to flush out this high, like it happens every time, just to flush the previous high, hit all these stop losses, and then start the real correction. So whatever it is, short term traders can look to short sell on rise कर सकते हैं, and positionally traders जो है आप थोड़ा price action देख सकते हो, and then you can start shorting. 4680 is the limit on the S&P 500, and I'm expecting market to correct in some time in the near future. Now it may not start correcting very violently as of now. I believe there will be a soft correction, again a pullback, and later on, somewhere post 10th of April, there can be big moves in the market. So at that time,
if we have already set in the bearish context, we would like to go for the short side. If there is no bearish context set by 10th of April, then it will mean that markets are going to go much higher. In that case, we will have to play for the long side. And if S&P 500, if the US market has put in a major bottom here, if these bottoms, the bottoms which were made on very high VIX reading of 40, the bottoms which were made by breaking the 200 DMA, and S&P 500 has corrected very nicely in terms of percentage. So if this happens to be a very strong bottom from a medium term perspective, then what US market should do is, after entering some pullback, it should again move higher towards the 5,000 level, which is where another major top will be made in the market and another huge correction will ensue, another huge correction will happen. So all these can take time, and I believe next 3 months, we have just now completed one quarter, from January to March, and we should also take into consideration the quarterly candles, how they are looking up. Because anything you analyze, just have a look at the quarterly candles, because that will set the precedent for the next quarter. So this is the long term chart of US market, and we can see there is a stopping candle, or you can say a bearish hammer on the US market, right, in the on the quarterly time frame. So what does this mean? Whenever last time we have seen such bearish engulfing or such sort of bearish quarterly candle, the next immediate quarter, you can see this is very clear, the next immediate quarter, right, is always an inside bar. ठीक है, तो it is very safe to assume that the next quarter, which is the current quarter from April to June, it is safe to assume that we are not going to go either on a breakout mode or on a breakdown mode. What we are going to ensue is a inside quarterly candle, because history has always told us that this is most likely to happen. So in that case, you should note the highs and the lows of these quarterly candles, plan a midpoint of that quarterly candle, and that will become your make or break level. So till we are respecting the supports, because we have been bouncing off from the bottom, we are respecting the supports, we should play for the higher side. So these candles will first like to go little higher, and then somewhere during the mid quarter, or probably once we are already 2 3 weeks into this quarter, then it can start the next leg of move like this, and towards the end of the quarter, it might again come and try to either close as a doji, or either give a decisive move. So this is how the flow of price should happen in the coming months, right? So hame as a market trader, we should have a bigger view as well, and try to play the markets on a day to day basis. Because if you are clear from a bigger perspective, you will never be surprised in market. जैसे कि हमने 15,500 का बॉटम जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली नेल डाउन किया था, और पूरा जो 6 महीने का बेयर मार्केट था, उसमें जितनी भी स्विंग्स आई हैं, सब बहुत ही प्रिसाइसली कैसे कैप्चर हुआ है, बिकॉज वी फॉलो द मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वार्टरली कैंडल्स, make some hypothesis as to what can happen on a monthly basis, then we drill down to the weekly time frame, and then we chalk out our plans as to what should happen on a every weekly basis. So when you do analysis in such a holistic manner, then 80% of the time, 90% of the time, you will remain on the right side of the market, which is what we have been trying to do. So this is the quarterly view of the US market, and the same applies to almost all equity markets. You can see over here also there was a bearish engulfing, a huge quarterly black candle. What followed is an inside bar. Even here there's a big bearish, and what followed is an inside bar, right? So we can see almost 90% of the time, 90 क्या, मुझे तो 100% दिखाई दे रहा है, मे बी एक कहीं ऐसा ना हुआ हो, but this is most likely to happen. Okay, so that is the view on the US market. अब बात करते हैं कुछ और इंडाइसेस की तरफ चलते हैं. So let us take some यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स. तो जर्मन डैक्स की बात करेंगे, तो जर्मन डैक्स ऑलरेडी जो है, आप देखोगे कि जर्मन डैक्स का जो क्वार्टरली कैंडल है, इट इज लाइक ह्यूज. सो आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी सेट अ टॉप इन प्लेस. आई थिंक द यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स, they are already peaked out, they have a top in place, and these are some long term tops which are getting made on a very overbought reading, and they have peaked out on
after distribution. So I think it is not easy for the European equity markets to keep going higher. I think they are going to underperform in this entire quarter. So maybe US market थोड़ा सा lead कर सकता है. Overall I don't expect the equity markets to make new highs in this quarter. India जो है ये भी एक एक्सेप्शन ही है. मुझे नहीं लगता है कि इंडिया भी न्यू हाई बनाएगा इस क्वार्टर में, बट यस, maybe in the July quarter we can make a new high. उसकी भी संभावना काफी कम है वैसे तो. So that's about the equity markets. German DAX भी अपने 200 DMA को retest करेगा थोड़े दिनों में. That is where it broke the last time, right? And this is what can happen. So probably it will trade a lot till it faces some resistance from the top. Similar activity हमें UK मार्केट में भी देखने को मिल रहा है. हालांकि UK ने काफी बेहतर रेजिलियंस शो किया है इस बीच, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस. ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड ऑल दोस कंपनीज दे आर बेनिफिटिंग. फ्रेंच मार्केट जो है ये भी बुरी तरीके से इसमें जो है पिस चुका है. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जर्मन मार्केट्स को हुआ है. अगर हम कुछ एशियन मार्केट्स की बात करें तो हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग ने लास्ट कपल ऑफ वीक्स पहले बहुत ही सॉलिड एक 20% की बाउंस जनरेट की थी, बिकॉज इट वाज हिस्टोरिकली एट अ लोअर लेवल. सो आई थिंक जर्मन द हैंगसेंग मार्केट इट कैन कंटिन्यू टू गो लिटिल मोर हायर. अगर हम एक ग्लोबल बेंचमार्क इक्विटी मार्केट्स को देखें तो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ ट्रेडिंग एट $46, ये लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में कंटिन्यू कर रहा है. और इसे मैं देख रहा हूं तो पिछले ये कई क्वार्टर से ऑलमोस्ट दिस इज द कंसेक्यूटिव फोर्थ बेरिश क्वार्टर दैट आई कैन सी ऑन दिस चार्ट. नाउ इस चार्ट का सिग्निफिकेंस आज नहीं है, बट इस चार्ट का सिग्निफिकेंस आफ्टर कपल ऑफ years this will be the most important chart on the planet. Why? Because you can see last time अगर 2008 के बड़े क्रैश की बात करें तो यहाँ पे हम लगातार ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर्स बेरिश थे. यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वार्टर्स बेरिश हो चुके हैं. यानी कमिंग 6 months is going to be very crucial for this index. Now इस इंडेक्स को अगर हम एनालाइज करें तो इससे बहुत सारी बातें समझ में आती है. नंबर 1, this was the all time high. Number 2, a new all time high was just made uh, before, I think it was just made somewhere before the COVID. And what happened, it could not sustain on the highs, and this triggered a very big fall, and we have made a sort of a wedge over here. So this is a rising wedge structure, but it is not at an all-time high, it is just a flush. So what can happen is it can come all the way down here to bottom at $38 somewhere by the end of this year, and again it can start a up move. Now once this up move starts, it must break towards the new high, and if that happens then we can see a very huge bull market unfolding in the entire emerging market space. और अगर ये ऊपर नहीं जा पाया तो फिर ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन होगा, बिकॉज दिस वुड मीन दैट वी हैव not sustained a 15-year high, or yeah, almost a 15-year high, and what we have done is just a sideways market, and this would mean a huge long term bear market in the equity in the emerging market equity space. Now this is going to be a very bearish context for coming 4-5 years. तो ये हम चलिए बाद में देखेंगे. फिलहाल ये ETF जो है अभी भी बेरिश है. ओके, फॉरेक्स मार्केट की बात कर लेते हैं फटाफट. सो यूएस डॉलर has done nothing. US dollar last week started on a bullish note, and then overall it did nothing. और इसमें यही एक्सपेक्टेशन भी था कि यूएस डॉलर में मुझे कुछ खास ना अपसाइड दिख रहा है ना डाउन साइड दिख रहा है. सो यूएस डॉलर में सेम व्यू मेरा इस वीक भी रहेगा. आई डोंट सी एनी मेजर क्रैक, आई डोंट सी एनी मेजर ब्रेकआउट. आई सी यूएस डॉलर ट्रेडिंग इन दिस हॉरिजॉन्टल बैंड, दैट्स इट. ठीक है. अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें, ब्रिटिश पाउंड की बात करें, तो ब्रिटिश पाउंड ने एक अपना आई थिंक सेकेंडरी पुल बैक इट इज जस्ट कंप्लीटिंग. आई थिंक ब्रिटिश पाउंड इज बुलिश, एंड वी शुड स्टार्ट अ रैली टिल 1.33 1.4 where the next set of resistance should come. So ब्रिटिश पाउंड में हम जो हैं बुलिश है. और अगर हम यूरो को देखें तो यूरो भी एक छोटा सा माइनर पुल बैक कंप्लीट कर रहा है. आई थिंक यूरो विल आल्सो स्टार्ट टू राइज अगेन, एंड इन द नेक्स्ट round euro can take out this resistance to stage a meaningful pullback. इसमें एक जो फ्राइडे को सरप्राइजिंग फैक्टर था वो था यूएसडी जेपीवाई, बिकॉज दिस हैज अगेन स्टार्टेड टू रैली, ओके, which I think was not expected, but maybe
फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू क्वार्टर है, सो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग वगैरह हो सकता है, so we can give it some benefit of doubt. Overall I think I will be surprised अगर USD JPY still manages to take out 123.5. I think what it can do is it can follow the chart of crude. अगर आप crude के चार्ट को देखेंगे तो इसमें भी एक huge high bana tha, then there was a huge selling, then again a huge pullback, and then again it went down. So I think a similar action should happen on the USD JPY. हालांकि 123.5 123.75 इन लेवल्स को हमें वॉच करना होगा, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये फिर अगेन एक स्टेल्थ मोड में चला जाएगा और फिर ये 126.5 के लेवल्स को टेस्ट कर लेगा. नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग NSE futures on the forex segment, then all these things are very important to you. So forex market में चार पेयर्स जो हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं, सबसे पहले USD INR, दूसरा जो पेयर है वो है यूरो INR, ठीक है, और तीसरा पेयर है GBP INR, and fourth pair is your JPY INR, right? So we have these four pairs and we must note down the levels. See USD INR में ट्रेंड क्या है, USD INR अभी एक एक सपोर्ट पे है. ओके, नाउ दैट सपोर्ट कैन गिव अ राइज, ओके, बट एक मेजर जो सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा नीचे है. सो यूएसडी आईएनआर पे मैं कुछ एक लेवल्स आपको देता हूँ, ये सारे लेवल्स जो है स्पॉट मार्केट के लेवल्स होंगे, ठीक है. यूएसडी आईएनआर में आई थिंक वी हैव 75.25 एज अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस. अगर मुझे यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा और नीचे मिलेगा 75-25 के आसपास, तो यहाँ से मैं जो है बाय करना पसंद करूंगा, और मेरा अगला जो टारगेट होगा ये मैं 76.5 तक के लिए इसको प्ले करूंगा, ठीक है. दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि अभी एक माइनर सपोर्ट है, तो माइनर सपोर्ट से भी ये बाउंस कर सकता है. इफ दिस हैज टू हैपन, देन यूएसडी आईएनआर मस्ट व्हाट, इट मस्ट टेक आउट 76.25 लेवल ऑन द फ्यूचर्स. इसे नोट करें, 76.25 फ्यूचर्स पे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मैं इसमें बाय ऑन डिप्स वापस करूंगा. इन दैट केस मैं 76 को या 75.9 को एज अ बेस बना के मैं फिर 76.75 77 के लिए प्ले करूंगा, ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा एक डिटेल में एक चीज बता रहा हूँ, उसे नोट करना चाहिए. यूरो आईएनआर जो है आई थिंक इट इज स्टिल गुड, और यूरो आईएनआर में अगर हमें थोड़ा और करेक्शन मिल जाए तो यूरो आईएनआर जो है हम बाय कर सकते हैं. आई थिंक यूरो आईएनआर 83.5 इज अ वेरी गुड लेवल एंड वी शुड बाय यूरो आईएनआर, और इसमें मैं 85 तक की टारगेट आने वाले दिनों में देख रहा हूँ. जीबीपी आईएनआर एज आई सेड 99.5 ऑलरेडी इज अ वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है. स्पॉट मार्केट में मे बी 99.2 कर सकता है. ओवरऑल 99.5 के आसपास हमें मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए, और इसका टारगेट हम रखेंगे 102. JPY INR दिस इज ऑल्सो गुड, और इसे मैंने एडवाइस भी किया है बाय करने को. GBP भी हमने बाय किया है मंडे को. लेट्स सी, हो सकता है थोड़ा ये लॉस में खुलेगा, बिकॉज ऑन फ्राइडे वी हैड दिस रैलिंग अप. सो नेवरदलेस इसमें जो है इस समय मैं समझता हूँ कि 61.5 का लेवल जो है बहुत ही वैल्यू बाइंग लेवल है, और इसे बाय करके रखना चाहिए. एंड ऑन द अपसाइड 63.2 इज द टारगेट. 63.2 के ऊपर जब JPY INR क्लोज हो जाएगा तो फिर हम ये इस्टेब्लिश कर लेंगे कि 62 का जो भाव है ये अब एक बेस बन चुका है आने वाले कई महीनों के लिए. एंड फ्रॉम 62 to 65 and 66 will be the new range for trading, wherein any dip you get you buy and you play for these targets, ठीक है. इसी तरीके से GBP INR जो है 102 को जब रिक्लेम कर लेगा तो फिर हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि 101 एक बेस हो चुका है, और हम शांति से जो है 103 के लिए प्ले कर सकते हैं. इसी तरीके से हर करेंसी में जो है सबके एक लॉजिक होती है, सबकी एक रेंज और एक बेस होती है, ठीक है. तो धीरे धीरे इन सब चीजों को जो है आप सीख सकते हो. ओके, अगर रैंकिंग की मैं बात करूं तो आई थिंक सारे मिक्स्ड बैग हैं, कोई क्लियर कट रैंकिंग नहीं है, तो मैं इस बार इसमें रैंकिंग नहीं दे पाऊंगा. बट स्टिल आई वुड रेट फ्रॉम अ बुलिश पर्सपेक्टिव. मैं समझता हूं कि आई विल लाइक टू गो विद जीबीपी आईएनआर ओनली एज द फर्स्ट बुलिश कंटेंडर, second euro as a bullish contender, okay. Third I would give JPY as a third ranking because it is at a value level, and fourth but not the least, you know, USD INR, okay. अगर शॉर्टिंग के टर्म्स में मैं कहूँ तो अभी आई थिंक कोई भी पेयर उतना
सही लेवल पे नहीं है जहां पे हमें शॉर्ट करना चाहिए, यू कैन चूज टू आइदर स्टे आउट और यू कैन प्ले इन दिस ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज द बुलिश ऑर्डर, लेट मी जस्ट राइट डाउन बिकॉज बुलिश ऑर्डर है। ठीक है, ये यहाँ पे इस समय है। ठीक है, सो इफ माई ऑडियो इज बेटर और इफ इट हैज इम्प्रूव जस्ट लेट मी नो, देयर वाज सम ऑडियो इशू people are saying। ठीक है, so we are very clear on the forex market, forex roadmap इस तरीके से रेडी है। okay, now let us very quickly check the commodities market। so commodities market में क्या हो रहा है? कमोडिटीज मार्केट में गोल्ड जो है, गोल्ड में एक ड्रॉप हुआ है। गोल्ड में एक लॉन्ग कॉल मैंने दिया था $1984 से, इसने बहुत अच्छा एक रैली किया एंड फ्राइडे वी हैव सीन अ ड्रॉप। फ्राइडे वी गॉट दी नॉन फार्म पेरोल। सो गोल्ड में इस समय एक छोटा सा मैं अपडेट देता हूँ, गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर आई एम बेरिश, गोल्ड में इस समय हमें लॉन्ग साइड में नहीं रहना है, थोड़ा सा गोल्ड जो है करेक्शन करेगा। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, गोल्ड हैज कंप्लीटेड द क्वार्टरली साइकिल। ठीक है, तो गोल्ड में देखो होता क्या है कि जनवरी से मार्च एंड का जो क्वार्टर होता है ये सबसे फेवरेट होता है बुलिश साइड के लिए। सो इफ यू सी वी स्टार्टेड विद द बॉटमिंग प्रोसेस बीइंग कंप्लीटेड इन द जनवरी मंथ। आप देख सकते हैं 1780 का बॉटम बना, यहाँ से 2022 शुरू हुआ एंड वेयर वी हैव पीक्ड इन दिस क्वार्टर। ठीक है, सो ये जो मोस्ट बुलिश साइकिल होता है, ये सीजनैलिटी होती है, ये हो चुकी है गोल्ड में। अब क्या होगा कि हम इसी रेंज में जो है हम जिग जैग करते रहेंगे फॉर दिस क्वार्टर एटलीस्ट। ठीक है, so the highs and lows are definitely done on gold। now we are at the center, we are at the center of this range, so neither parties have any incentive। so who will have incentive? the technical traders। ठीक है, जब कोई चीज नीचे होती है तो बायर्स को इंसेंटिव है, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो चुकी है तो शॉर्टर्स को इंसेंटिव है। बट वी आर एट द सेंटर ऑफ अ established range, so neither parties have any incentive। so who will have incentive? the day to day traders, the short term traders। so इसका क्या मतलब है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हमें इसमें लेना चाहिए। कोई बड़ी प्रिडिक्शन के बारे में नहीं सोचना है, कोई बड़ी मूव के बारे में नहीं सोचना है। यू जस्ट प्ले फॉर द नेक्स्ट 500 points, 800 points on gold and you play for next 1500 points on the silver। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेशियस मेटल मार्केट को अप्रोच कर सकते हो। नाउ कमिंग फॉर दिस कमिंग वीक, आई थिंक गोल्ड में इफ यू वांट टू बाय देन द बेस्ट लेवल इज $1890 और जस्ट $1885 विद अ स्टॉप लॉस एट $1860। तो मैं यहाँ पे डॉलर के टर्म्स में लिखता हूँ 1885 to 1890, this is a very good buying zone and stop loss will be 1860 65 भी आप कर सकते हो। ठीक है, this is a very nice your stop loss, this is your entry and the targets will remain the same, the targets will be say 1960। ठीक है, सो ये गोल्ड में हमारा प्लान होगा, वेट करें, डिप आएगा, डिप को बाय करेंगे, ऊपर बेचेंगे, दैट्स इट। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे गोल्ड में। सिल्वर में आई एम स्टिल स्लाइटली बेरिश फॉर नाउ एंड सिल्वर अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो मैं समझता हूं कि सिल्वर को और थोड़ा ड्रॉप करने दे। सिल्वर इफ इट कम्स नियर 65,000 दैट टाइम वी विल सी, दिस इज द प्रीवियस हाइज। सो सिल्वर आई विल बी मोर इंटरेस्टेड समवेयर हियर, somewhere near 65,000। I think only over there I will be interested, rest I will not touch the silver market। probably we are going to make some sort of a flag pattern or it may convert into channel, बहुत सारी चीजें यहाँ पे possibilities हैं। overall 65,000 का बहुत अच्छा support है, so I would like to play the long side at 65,000 with a stop loss just under 64,000 and for a target of 68 to 69,000। ये प्लान होगा सिल्वर में। ठीक है, बीच में शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड मुझे करना ही नहीं है, बड़ा ट्रेड लेंगे, ट्रेड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। क्रूड ऑयल की बात करते हैं। सो क्रूड ऑयल इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्रूड हैज गिवन अ वीकली क्लोजिंग बिलो द 99 below the psychological $100 level। now if you look at the quarterly chart of crude, ये चार्ट काफी अजीब दिखेगा क्योंकि क्रूड वेंट टू दी negative territory, because of that the chart is like distorted। so if I look at the quarterly chart I see there is no weakness on the quarterly front। yes, quarterly में हमने जो है 100 को साइकोलॉजिकल को मेंटेन किया है, इसके नीचे हमने जो है या यहीं पे क्लोज किया है and we have left a long tail, a 30% tail on the higher side। so जिन्होंने भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड की है, all those who have attended the price action training where I have explained how to read the psychological background of the markets using candlesticks, you can know
that if we start to pull back, if we start to trade on the higher levels, there is a very great chance that we can again very well go and test the previous highs, correct? सो अगर क्रूड की हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस वीक में क्रूड में डिसाइसिव एक एक्शन होना चाहिए, ठीक है? सो व्हाट हैज हैपेंड इन क्रूड इज वी पीक्ड आउट 4 weeks back here at 130 sort of level, and we witnessed a huge drop at $92. Then we have bounced till 118, and now we are trying to make a secondary bottom here, which is again a very very solid level, ठीक है? यहाँ पे पिचफॉक सपोर्ट है, 65 डे मूविंग एवरेज है, प्राइस एक्शन है, there are a lot of things to provide some cushion here, right? So what I would suggest is watch how market opens on Monday, and मैं इसमें ये सलाह दूंगा कि अगर हमें नीचे और क्रूड मिले डॉलर के टर्म्स में $96, एमसीएक्स के टर्म्स में अराउंड 74, आई वुड से 73 से लेके $74, 7400, तो मैं एक बॉल पार्क एक 7400 का लेवल मेंशन करता हूँ. इट कैन गो 73 और इट कैन जस्ट कम एट 74. डॉलर्स में 96, क्योंकि यूएसडीआईएनआर भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हमें जो है दोनों को एक जजमेंट लेके चलना होगा. ओवरऑल चार्ट्स की मैं बात करूं तो I would look to buy here, which is around $96 with a stop loss of say $92. So इसका stop loss जो हो जाएगा वो हो जाएगा $92, and इसका stop loss थोड़ा wide हो जाएगा. I think it will come 7150 or 7100, and the targets will be again something like this towards first target मैं रखना चाहूंगा somewhere near $108, which is the last breakdown point. So this will go at 108. So this will translate to 8,000 on MCX. And if we are through that, then there is no looking back. I think we are going minimum at 118, and here minimum 8,400 rupees. And then if this is crossed, that means there will be huge geopolitical crisis coming from the Russia and all these, Ukraine and all these factors. And then I don't know what will happen. Probably I won't be surprised if crude goes all the way to make a new all-time high just near 145. So बिट्स एंड पीसेस में हम इसे लेके चलेंगे दोस्तों, ठीक है? डोंट गेट वेरी मच कैरिड अवे. हो सकता है कि ये ब्रेक करके सारा हाइपोथेसिस जो है फ्लॉप भी कर दे उतना ही इजीली, बट $92 holds the key. I think this is the roadmap for crude oil. If we are protecting the $92, $95, then I see crude going something or doing something like this. I won't be surprised at all. And post this, if this really happens, and then after peaking out at 145 $150, again I expect a huge crash in the crude oil market. So the script to trade for 2022 is crude oil. Crude oil is the most important script, and you can really make lot of profits trading crude oil. yes, it is difficult. जो लोग MCX में एक्सपीरियंस रखते हैं उनके लिए आसान है, बट नए लोगों के लिए काफी कठिन है. इनफैक्ट in our training, you see we have specially mentioned MCX. Why? Because the price action and technicalities remain same in all asset classes, but then every asset class has its own style of price action. Something works more, something works less. So this is what I try to share, that on MCX what to focus more, and on Nifty Bank Nifty what to focus more. Okay, so ये हो गया हमारा क्रूड ऑयल पे. नेचुरल गैस की बात करें, अच्छा बाय द वे थर्सडे के दिन भी क्रूड ऑयल पे मैंने बुलिश ट्रेड दिया था, एंड फिनोमिनल उसमें मूव्स हुए. फ्राइडे आल्सो आई गिव बुलिश कॉल प्रिसाइसली एट द बॉटम, एंड उसमें भी इंट्राडे आई थिंक कपल ऑफ रोटेशंस हैपेंड ऑफ 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, 125 पॉइंट्स. तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं आई थिंक दे आर बेनिफिटिंग अ लॉट. नाउ नेचुरल गैस की बात करते हैं. सो वेरी क्विकली अगेन नेचुरल गैस में मैंने बाय ट्रेड दिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? और नेचुरल गैस दोस्तों में ₹350 से बाइंग साइड में हम ट्रेड करवा रहे हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार पीक आउट हुए, इफ यू रिमेंबर, नियर द 400 मार्क, राइट? सो फ्रॉम दिस ब्रेकआउट एट 350 सबसे पहले हमने 400 पे गए. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आया, तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया. अगेन इट केम नियर बाइंग लेवल, एंड अगेन यहाँ से जो है मैंने बाई साइड में ट्रेड कराया. अगेन 400 पे रेजिस्टेंस था, अगेन हमने 390 से बाय कराया 430 के लिए, 430 पे आउट. अगेन अभी 2-3 दिन पहले 400 पे बाय कराया, ठीक है? एंड इसका फ्रेश ब्रेकआउट भी मैंने बाय कराया 424 पे. जितने ग्रुप मेंबर्स हैं आई थिंक
you are witness to this, and again we are seeing very nice moves. So natural gas में literally every move has been updated to the group members. YouTube पे भी काफी चीज मैंने शेयर किया है. Now we have made a inside bar. ठीक है. सो अब नेचुरल गैस में एक चीज ध्यान देना, कल खुलते ही अगर हम 440 वालीस को नहीं काटते हैं तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर देना. वैसे तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि एग्जिट करके जाना, ओनली दोज हु कैन अफोर्ड इसको आप कैरी करिए. इफ यू हैव गुड क्वेश्चन तो आप कैरी करो, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैलिस्टिक हो सकता है. गैस की क्राइसिस आप पढ़ रहे होंगे, यूरोपियन मार्केट्स में भयंकर गैस की क्राइसिस होने वाली है, एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन नेचुरल गैस. बट फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा कहा था. So if 440 is not crossed, 440, 445 is not crossed, इसको exit करें. Let us wait for one more dip, and if we happen to get another dip, so near 400 हम इसे वापस से buy करेंगे for one more push on the higher side towards maybe straight away 500. तो कुछ मैं इस तरीके से इसे मैं देख रहा हूँ. ठीक है. अगर 440 के ऊपर खुलता है तो डायरेक्टली बाइंग करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा और काफ़ी रिस्की हो जाएगा. सो आई विल वेट एंड आई विल अपडेट इन द टेलीग्राम ग्रुप कि कहाँ पे हम इसे बाय कर सकते हैं. ठीक है. सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. ओवरऑल वी आर वेरी बुलिश ऑन नेचुरल गैस, एंड एज यू कैन सी वी हैव लॉट ऑफ रूम टू गो. ऑलमोस्ट टिल 520 तक नेचुरल गैस जो है जा सकता है इस क्वार्टर में. इन एमसीएक्स लेट अस वाइंड अप. बाकी मेटल्स में कुछ खास अपडेट नहीं है तो हम इसे वाइंड अप करते हैं. वेरी क्विकली बिटकॉइन और इथेरियम को कवर करते हैं, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं. सो बिटकॉइन एंड इथेरियम, व्हाट अ फैंटास्टिक रैली, और कितना बढ़िया तरीके से इसे कैप्चर किया गया. यहाँ पे लॉन्ग सजेस्ट किया गया था फॉर अ टारगेट ऑफ 44,000, देन इसका ब्रेकआउट हुआ 48,000, ये भी टारगेट डन. और इसके बाद मैंने आपको एडवांस में बताया था कि दोस्तों कोई भी डिप आता है वेट करें, और कोई भी डिप आएगा इस जोन में तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है. करेक्ट. ये बात भी हुई थी. इथेरियम पे भी यही चीज कहा था मैंने. सो आई थिंक ऑन फ्राइडे वी गॉट दैट वेरी नाइस करेक्शन, and this was a fantastic place to buy Bitcoin and Ethereum. Look at this. This is the 233 moving average. This was the resistance consistently. This is where we broke through the resistance. This is breakout, retest, support. Correct. So यहाँ पे buy करना था, and since then Bitcoin has moved almost 2,500. We are still making inside bar. Some sort of bearishness is there, but I'm pretty sure that 44,000 को प्रोटेक्ट करके ये बैलिस्टिक होना चाहिए 52,000 के लिए. सो अगर पोजिशनली मैं बात कहूं तो अगर एक और कोई गिरावट आती है 44,000 पे तो आप इसे पोजिशनली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, बाय 44,000, स्टॉप लॉस से 42,000 और जस्ट अंडर 42,000, टारगेट 52,000. ये एक सेकंड मेरा बड़ा ट्रेड है. पहला ये ट्रेड था जो कि डन. ठीक है. ये दूसरा मिनी ट्रेड था, ये भी डन, एंड ये अब थर्ड ट्रेड में दे रहा हूँ बिटकॉइन पे. नाउ कुछ लोग टैक्स वैक्स को लेके काफी परेशान है, तो अपना काम करो, ये सब बातें बाद में टैक्स वैक्स को हम डील कर लेंगे. नाउ इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम में भी आप देखो कितना बढ़िया शानदार मूव आया है. इथेरियम इफ यू रिमेंबर $2,500 से इसको मैं बाय करा रहा हूँ. वेरी वेरी प्रिसाइज ट्रेड, and look at this, what a phenomenal chart, what a beautiful chart. And again you got a pullback here at 3,200 and we are trading almost at 35. So आपको याद होगा इथेरियम पे मैं ज्यादा बुलिश था, and Ethereum it is sure to go till 4,000. So very beautiful chart, and 4,000 का लेवल Ethereum पे very 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 high chance. So again कोई भी एक pull back आता है towards 3,200 level, it's a buy. ठीक है. 32 पे बाय करो, स्टॉप लॉस 29 को रखो, एक ही टारगेट एक ही नारा, सीधे 4,000. अब की बार 4,000 ऑन इथेरियम इज अ डन डील. सो यू हैव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आल्सो. बहुत ही शानदार ये ट्रेड है. ठीक है. सो क्रिप्टोज में फिलहाल के लिए इतना ही. अब हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में जहां पे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, एंड व्हाट अ फिनोमिनल रैली इन द इक्विटीज मार्केट. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक बार रिमाइंड कर देता हूं दोस्तों कि नेक्स्ट ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड ऑन April 16th एंड 17th. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए, जुड़ जाइए, एंड वंस यू रजिस्टर टेलीग्राम ग्रुप में 3 मंथ्स के लिए आप जो है ऐड हो जाएंगे. ओके. नाउ लेट अस सी इक्विटीज में क्या स्कोप है. सबसे पहले बात करते हैं कि क्वार्टरली चार्ट्स की. तो निफ्टी में if I look at the quarterly candle, then no marks for guessing. We have made a positive doji candle. Now एक चीज ध्यान देना है कि पिछले almost 9 months से
निफ्टी इज स्ट्रगलिंग एट 17,600 लेवल. सो इस कैंडल का जो क्लोजर था वो था 17,600. इस कैंडल का क्लोजर लगभग 17,600. इस कैंडल का क्लोजर लगभग लगभग 17,600. ठीक है, और हम 17,600 से ऊपर जा रहे हैं. सो जब भी कोई हाइयर टाइम फ्रेम के कैंडल्स में कोई एक लेवल अगर एक सिमेट्री हासिल कर लेता है, कोई एक लेवल जो है बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग इन नेचर हो जाता है, तो वो एक वैल्यू एरिया बन जाता है. काफी लोगों को मार्केट प्रोफाइल आपने सुना होगा, बट मार्केट प्रोफाइल एक्चुअली में क्या होता है ये आप इस तरीके से समझिए. वेन एवर यू हैव लॉट ऑफ ऑक्शन एट वन प्लेस, ये एक वैल्यू एरिया बन जाता है, और ये फिर आने वाले कई सालों के लिए आधार बन जाता है फॉर इट्स नेक्स्ट बुल मार्केट और इट्स नेक्स्ट बेयर मार्केट्स. ओके, सो इन बातों को आपको नोट करना चाहिए. जहां भी आपको ऐसी सिमेट्री दिखाई देगी, ये आपका एक लाइन इन सैंड बन जाता है. इसके ऊपर इट्स ऑल बुल्स, इसके नीचे इट्स ऑल बेयर्स, राइट. सो हम सबसे पहले हाईएस्ट टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं. सो वी कैन सी दैट 17,580 और लेट अस टेक 17,500 which is a round number. So till 17,500 is like defended from a long term perspective, medium term perspective. Markets above 17,500, it's in a bull's camp, and we have already made 18,600 as a high. So probably 18,600, 19,000 can be the future scope. Below this, we have traveled all the way towards 15,500. So that will be our base. ठीक है, तो एक लेवल जो आपके मन में होना चाहिए वो है 17,500. कि बहुत 17,500 के ऊपर जब तक ये मार्केट वीकली बेसिस पे है, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, और ऊपर में मार्केट कहीं भी जा सकता है. एक रीजनेबल टारगेट होगा 18,000, 18,200. पुराना हाई जो था वो था 18,600. ठीक है, और अगर नया हाई बनता है तो आप 5% भी इस पे ऐड कर लेते हो तो आपको एक टारगेट आ जाएगा, चाहे जो भी हुआ है 19,500 एक्सेट्रा. Below 17,500, this is where the symmetry starts to take a turn on the lower side. So यहाँ पे अगर हमें एक कंजर्वेटिव डेली क्लोजर मिलता है या फिर वीकली भी क्लोजिंग होने लगती है, तो फिर हमें शॉर्ट साइड प्ले करना चाहिए और हमारा विंडो फिर नीचे की तरफ खुल जाता है टुवर्ड्स दी 15,500 लेवल. ठीक है, ये एक ब्रॉडर रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट को एक बड़े लेवल पे एनालाइज करना है. ठीक है, ताकि मेंटली आप क्लियर रहो कि बड़ा चाल जो है, बड़ा जो एक लेग है वो किस तरफ हो रहा है. क्योंकि आप मार्केट में कंफ्यूज नहीं रह सकते, आपको एक डिसाइसिव स्टैंड आपको लेना ही है. ठीक है, या तो आप कौरवों के साथ हो या तो आप पांडवों के साथ हो, बीच में कुछ नहीं होता. ठीक है, सो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान दें. नाउ व्हाट अबाउट दिस वीक. ठीक है, इस वीक में हमें किस तरीके से निफ्टी को अप्रोच करना चाहिए. लेट मी जस्ट ओके, yeah. So for this week, we can clearly see that Nifty has closed above 17,350, करेक्ट, जो कि लास्ट वीक का मॉब लेवल था, और ऊपर के सारे टारगेट जो हैं इसमें अचीव हो चुके हैं. नाउ इन दिस कमिंग वीक वी हैव टू बी cautious also. Even if you are a bull, you have to be cautious. Even if you are a bear, you have to be cautious. ठीक है, और रेफरेंस के लिए ट्यूसडे या वेडनेसडे का स्टार्टिंग का वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों. तो जैसा मैंने उस दिन बात किया था, आई थिंक इट वाज ऑन वेडनेसडे, दैट देयर कैन बी अ मेल्ट अप रैली लाइक दिस. ओके, एंड द स्टार्ट हैज हैपेंड. So that was point number 1. Point number 2 is you may never know this market where it can peak. It can obviously go and meet this target over here, but markets are not meant to do the obvious things. They are meant to do something which nobody expects, right? So initially, after making this as a bottom, this is where I called the bottom and I gave the target of say 18,000, right? But market is not going to give me everything on a platter, right? So market या तो 18,000 जाके यहाँ पे कुछ astonishing करेगा, okay, और market will undershoot. Okay, either market will just take out this high, which is I think 17,800. It will just take out this high and start a very sharp reversal, or this market is not going to stop till it takes out this high, which is here, and then start a reversal. So इस second point को जो है note आप कीजिए. Now, what is this level? This level is, I think, 17,800. We are almost 17,670. It's just less than 1%, right? So almost it's a done deal that, let's say, this market is going towards psychological number of 18,000 for now, but we have to be cautious. Why cautious? Because of this reason that we can take out this high
and start a correction. Okay, now we have to note one thing, that since this bottom there has been no pullback. There was one pullback here, okay, but it was time wise, it was not price wise. So we are seeing a similar activity what happened here, okay, and what followed next. So we have to be cautious. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो है बहुत ज्यादा carried away हो गए. No, even if you are a bear, don't just start shorting thinking कि यार ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कहाँ जाएगा, सिर्फ 18,000 ही जाएगा, 300 पॉइंट ही है, एवरेजिंग कर लूंगा. नहीं, ये सब चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये सब चक्कर में आप पढ़ोगे और मार्केट यहाँ से भाग गया 19,000, तो आप खत्म हो जाओगे. ठीक है. और सपोज अगर आप बुलिश हैं और आप बहुत ज्यादा कैरीड अवे हो गए कि मार्केट अब न्यू हाई जाएगा, ट्विटर वाले बोल रहे हैं और यूट्यूब वाले बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि जब ये रिवर्सल यहाँ से होगा, यू विल बी कॉट ऑफ गार्ड, जैसे यहाँ पे हुआ. करेक्ट. एंड देन अगेन लेने के देने पड़ जाएंगे. तो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट रखो और प्रिसाइज तरीके से काम करेंगे. रेफरेंस के तौर पे 17,500 मैं आपको बता चुका हूँ, 550 17,500. नाउ लेट अस कम टू दिस वीक्स मॉब लेवल. सो वेरी सिंपली पुट, मैं इसे दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. ट्राई टू रिमेंबर, एंड अगर आप उसे समझ गए तो बहुत ही शानदार चीज होगी. नंबर वन, if I open the complicated chart of mine, you can see that we are approaching a next time zone. Last time zone में मैंने bottom कहा था और 10 मार्च के आसपास bottom बना था. अब we are going to approach that time window of round about say 10th ऑफ अप्रैल सॉर्ट ऑफ लेवल. ठीक है. तो यहाँ पे मेरी जो ओरिजिनल जो प्रिडिक्शन थी कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से रैली करना चाहिए अप टू दिस 18,100, and then we should start the next course of drop towards 16,600 by say 20th of May. Okay, so this part has happened. Now whether this part will happen or not, that we will come to know round about at 10th of April. ठीक है. So इस वीक में हमें क्या अप्रोच करना है. देखो, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे आने वाला है, जो कि है 17,775, यानी 17,777. लेट अस राउंड इट अप to 17,800. So there is one resistance going to come at 17,800 level, and we have a very strong support at 17,320 level. So for this week, I would like to go with this range as a trading ground. So मेरा जो मॉब लेवल होगा इस वीक में, सिचुएशन ऐसी है कि आपका मॉब लेवल ये भी हो सकता है, आपका मॉब लेवल ये भी हो सकता है. ठीक है. सपोज वी कैरी द बुलिश एक्टिविटी ऑन मंडे एंड वी ओपन अगेन गैप अप एंड वी क्रॉस और वी रीच दिस लेवल ऑफ से 17,000 से 800, ओके, सॉर्ट ऑफ लेवल. सो मेरा जो मॉब लेवल हो जाएगा वो 17,800 हो जाएगा, which simply means that if I'm sustaining above this, I will be bullish, and my first target will be say 18,100 level for this week. Okay, if I'm not sustaining above this, I can fall very easily towards 17,320. ठीक है. And if we break 17,320, then very easily we can go all the way till say 16,850. Now this makes the case little complicated, क्योंकि ना तो हम 17,300 पे हैं, ना तो हम 17,800 पे हैं. So that is why I said it's a little tricky from a day-to-day trading perspective. So 17,800 पे ध्यान देना. ये basically आपका एक trading range है. I don't expect market to break on either side convincingly. I feel this week we should remain in this zone. So यहाँ पे हमें 17,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो हम शॉर्ट करेंगे 17,300 के लिए. 17,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम इसे लॉन्ग को कैरी करेंगे या फ्रेश लॉन्ग करेंगे विथ वन माइनर स्टॉप लॉस ऑफ 17,620 फॉर अ टारगेट ऑफ 18,000 लेवल. ठीक है. सो इस तरीके से इस वीक को अप्रोच करना है. अगेन more stock specific action will happen in this week than the index trading itself. Friday का चार्ट काफी बुलिश था. Friday we have seen extension of the range, breakout of the 2-day range. So very nice, very good price action. Now one thing जो highlight मैं अभी कर देता हूँ before anybody does on social media is that the 6-month RSI is almost breaching the trend line resistance which has held till now. Okay, now I very rarely use indicators and oscillators, but this is something which is a piece of information that you cannot ignore. So that is why I said with this as an underlying
reading and the price action sustaining higher levels, this is a very nice thing. This is a very bullish perspective, in fact. And if we start to roll down like this, so which will mean that we have entered the second or third leg of correction, so we will go short. ठीक है, इस तरीके से. चलो, I think I have spoken enough. Let us very quickly take Bank Nifty and then we can take some stock queries. तो Bank Nifty में सुपर डुपर रैली, फ्राइडे के दिन तो ह्यूज रैली हो चुकी है इसमें. एंड द चार्ट्स दे हैव आल्सो रिपेयर्ड देमसेल्व्स, एंड ऑन वीकली बेसिस we have managed to cross the 36,300 36,400 resistance level, which is quite nice. Okay, so the tone is bullish for this week, and let us see what we can expect on the Bank Nifty. Now let me tell you that immediately we should fill this gap which was left behind on say 23rd of Feb. So ये level जो है लगभग 37,425 आता है. So I think we should fill this level 37,450. Okay, and over there watch out for some weakness. So a price action trader, you must see this gap area 37,450, 37,500, somewhere here. And if it starts to show intraday weakness, this is where you can short for a very good pullback move towards 36,700, 36,600 level. ठीक है. अब वीकली पर्सपेक्टिव क्या होगा? सी, वीकली पर्सपेक्टिव इज डेफिनेटली बुलिश बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड ऑल द रेजिस्टेंसेस लाइक दिस. ओके, and the next resistance comes at higher level of 37,880. So for Bank Nifty spot this week, the make or break level will be 36,600 level. ठीक है, जब तक हम इसके ऊपर हैं we will be bullish, and any dip that comes we have to buy. For our first target it will be 37,500, and second target 37,900. I would like to go with just two targets for this week. Okay, Monday ke din if we fill this gap near 37,500, we start to show some weakness, तो आप definitely एक short trade attempt करना, it will be worthwhile, and probably you can get a move till 37,000 round number on the same day. So one trade can come like this, then we will buy and we will play for the highs at 37,900. So इस तरीके से बैंक निफ्टी को हमें इस वीक में डील करना है, right? So that's all on Bank Nifty. I think the chart is very very simple, very clear. There is no further explanation needed for Bank Nifty. If you look at the weekly chart, it has managed to cross the barriers, and upside windows are still open. The window is still open till 38,900, but I would like to take baby steps for now. Okay, yeah, so that's all from my side on Nifty and Bank Nifty. And if you have any stock queries, you can message here and we can take some of your stock queries. If I talk about the internals of the market, the sectoral indices, then we have definitely some insights about the sectors. So few sectors are looking very nice and few sectors are still looking pathetic. So the PSU bank index, if you remember last week I said this is the most bullish index and the safest index on the long side, and on Friday we have rallied 4%. So this was outright breakout. What a beautiful breakout on the PSU bank index. So this is fantastic. So PSU bank index is the safest bet for this quarter, and that has already started to move up. Pharma is again doing nothing. Pharma as an index, I think it is bearish. Selected good names can do perform well, but I think as a index I think this is bearish, and I think this will again go lower in the coming quarters. Similarly metals जो हैं ये अभी भी बुलिश हैं, बट मेटल्स में जून तक हमें cautiously bullish रहना, because I think metals are too much stressed, right? They always run a risk of heavy profit booking. So metals में और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल हिंडाल्को में दिखा. हिंडाल्को में आप देखिए कि कितनी बड़ी करेक्शन आ गई, करेक्ट? सो मेटल्स में बुलिशनेस है, बट बहुत ऊपर के लेवल्स पे या फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह बाय करना, आई थिंक दैट वुड नॉट बी वाइज.
The good thing will be to wait for corrections in individual stocks and then play on the long side. Similarly, from an index perspective, uh, autos autos I think फिलहाल इस वीक में या मे बी इन द नियर शॉर्ट टर्म they can perform well. Some up move should come in the auto space, uh, but thereafter I think again they will face headwinds. I think the CNX auto, once it reaches the 11,300, that is where a gap is there. I think over there it will face some hurdle. So some up move can be seen till 11,300 400, post which some correction should happen in this. CNX IT इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वार्टरली कैंडल जो है इसमें बेरिश एक स्टॉपिंग कैंडल बन चुका है. सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन IT. Some upside can come in the next few days, but I think IT is not the sector to look for. Okay, I think IT can do very well like this in the coming weeks or coming days. Okay, so I think IT has made a top, or I think is very close to that, and probably we should see something like this. Okay, इस तरीके से चलिए, let us take some stock queries very quickly and then we can wind up today's session. आज का जो सेशन है संडे के दिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. सो दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए और सब लोग जो है ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर हो जाओ, ताकि सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकें. चलो, फर्स्ट क्वेरी इज ऑन केपीआईटी टेक्नोलॉजीज. लेट मी टेक दिस स्टॉक. आईटी पैक है. आईटी का बड़ा व्यू मैं बता चुका हूं दोस्त, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देना. बहुत ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने इसे बाय किया है देन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 564. ओके, ओवरऑल ये स्टॉक ठीक है, चार्ट भी ठीक है. फॉर an up move till this, I'm not sure about 700, but yes, this stock deserves one round of breakout till 688 level, holding the 550 सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट टूटा तो निकल जाना, क्योंकि 233 मूविंग एवरेज 435 पे है. सेक्टोरल एनालिसिस बता चुका हूं मैं, कहीं ये ऐसा ना हो जाए. ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट टूटा तो निकल जाना. टिल दिस 550 is holding up. Yes, we have this resistance at 610 620. If we break this, then very nice, very easily 688 can come. ठीक है, सो सपोर्ट पे ध्यान दो, टारगेट छोड़ दो. सपोर्ट अगर इंटैक्ट है तो टारगेट आज नहीं तो कल आ जाएगा. इस अप्रोच से इसे डील करना है. ठीक है, नेक्स्ट है HCL टेक्नोलॉजीज. HCL टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं. सो HCL अगेन IT पैक है, बट HCL इज ऑफ द बेटर लॉट. HCL में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जो है इसे बाय करिए 1120 पे. ठीक है, 1120 पे इसको बाय करेंगे एंड 1050 का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड इसको छोड़ देंगे टिल 1260 सॉर्ट ऑफ अ लेवल, 1260 टू 1300. ओके, सो इसमें मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ मैं दैट the only good level to buy is 1120, stop loss 1050, and single target I'm giving which is say 1300 level, which is a pending gap over here. I think it is 1320, so maybe 1320, that's it. इसके अलावा और कुछ इसमें हमें करना ही नहीं है. बहुत ही सिंपलिस्टिक चार्ट है, so just follow the chart. Right now it is I think at 1170, so it can move little up and again drop till this level. ठीक है, इसका फोटो ले सकते हैं. ये इस तरीके से हम इसे देख रहे हैं. ओके, वेरी गुड चार्ट. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आफ्टर दिस क्वार्टर, लाइक वंस द जून कैंडल क्लोजेस, जून के बाद अगले क्वार्टर के लिए इस स्टॉक को आप रिमाइंड करना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चार्ट में बहुत कुछ होने वाला है जुलाई के बाद. ठीक है, ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेरी है HDFC. HDFC and HDFC Limited, sorry, HDFC Bank and HDFC Limited. So HDFC इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आज नहीं तो कल ब्रेक करेगा, बट मैं इस पैटर्न को नहीं देखता. मैं देखता हूँ कि 25-50 को कैसे डील करेगा. सो 2550 इज द इमीडिएट टारगेट. वहां पे जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें एंड आफ्टर दैट it should come down at 2350. That is where you can buy back. So 2350 पे यहाँ पे आप buy कर सकते हो with a stop loss of say 2200 for next round of up move till 2700. अभी right now 2530, 2530 is the target. From there it should come till 2350. 2350 पे बाय करना चाहिए. 2200 का स्टॉप लॉस होगा और अगले राउंड में
2700 का ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, सो ये व्यू होगा HDFC लिमिटेड पे। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है विधि स्पेशलिटी, ओके विधि स्पेशलिटी, ओके। So this stock has given a fresh round of breakout, but it is going to approach the trend line resistance somewhere or around, I should say, the 500 level. तो यहाँ पे ध्यान देना, 480 प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर लेना, 480 to 490 एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना, मैं समझता हूँ इसमें सही होगा। नेक्स्ट है ITC। सो ITC में पोजिशनली बुलिश हैं हम, आपको पता होना चाहिए। और ITC जो है 280 पहला टारगेट है, 280 हो जाएगा थोड़े दिनों में, फिर 320 का दूसरा टारगेट है, वो भी टारगेट हो जाएगा। ठीक है, सो ITC में कोई टेंशन नहीं है। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो ये जो रेजिस्टेंसेस थे वो अब सपोर्ट का काम करेंगे। तो अगर कोई बैड न्यूज़ वगैरह पे 235 का भाव आता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 220 के स्टॉप लॉस से टारगेट सेम होंगे, 280 और 320। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है SBI कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स एंड पेमेंट SBI। सो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स एट बेस्ट 920 कैन कम, जैसा पहले कहा हूं मैं कि ठीक है, क्योंकि दीज आर ऑल डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स, सो दे आर जस्ट गेटिंग अ चांस टू डू द टेक्निकल पुल बैक। नाउ मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, जो फंसे हुए लोग हैं। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा तो फिर अगेन वही स्टोरी रिपीट होगा। सो 925 930 दैट इज द मैक्सिमम दैट आई कैन सी फॉर SBI कार्ड। हाँ, अगर उसके बाद बाजार और बुलिश रहता है तो ये फिर एक और लेग देगा, उसको भी हम प्ले कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है ISEC, ओके, ICICI सिक्योरिटीज। ICICI सिक्योरिटीज इस समय दोस्त बेरिश काउंटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 580 का एक सपोर्ट है एंड टेक्निकल पुल बैक आएगा 680 के लिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ऊपर इसमें उम्मीद रखना इज लाइक, ठीक है, कि उम्मीद मत रखना इससे ज़्यादा ऊपर, यहाँ तक आ जाए यही बड़ी बात है, इसके बाद हम फ्रेश देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है हिंडाल्को पे बाइंग के लिए। सो हिंडाल्को तो मैंने कितने बढ़िया तरीके से पिछले 4 महीने में इसको आपको ट्रेड करवाया, राइट फ्रॉम दिस ब्रेकआउट ऑफ 450, देन दिस ट्रेड ओवर हियर एंड देन दिस ट्रेड ओवर हियर। सो हिंडाल्को हैज कंप्लीटेड ऑल द टारगेट्स ऑन अपसाइड। लेट मी टेल यू द बैड न्यूज दैट आई एम नो मोर बुलिश ऑन हिंडाल्को। जो लोग मेरे ग्रुप में, आपको याद होगा कि हिंडाल्को में मैंने यहाँ पे जो एक ट्रेड आया था, इफ यू रिमेंबर, 550 से मैंने क्या कहा था कि 550 से 605 पे निकल जाना, ऊपर की ख्वाहिश मत रखना। 605 पे लोग नहीं निकले क्योंकि बुलिश था, ये चला गया 640 पे और लोग फिर भी नहीं निकले और आज वो अंडर वाटर है। सो लर्न टू लीव समथिंग ऑन द टेबल। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एंड टू एंड जो चेस करता है वो ही फंसता है। सो ये चीज यहाँ पे हो गई है। नाउ वी हैव अ very credible double top in place on Hindalco. So right now what can happen is we should definitely try to buy here. Okay, एक बार हमें इसे चांस देना चाहिए। We have some supports, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, फ्लिप जोन है, 65 डे मूविंग एवरेज है, काफी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 550 560 के आसपास बाय करिए, 530 का अधिक से अधिक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट दिस स्टॉक हैज पीक्ड आउट, मतलब मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाऊंगा कि ये बंदा वापस से एक न्यू हाई बनाए। ठीक है, मैं इस स्टॉक को अगर मैं 550 से प्ले कर रहा हूँ तो मैं अधिक से अधिक वही सेम 605 के लिए प्ले करूंगा, दैट्स इट। एंड आई विल लाइक टू एग्जिट हियर इटसेल्फ, नॉट चेज इट इनटू अ न्यू हाई, क्योंकि इवन इफ इट गोज एट न्यू हाई, लेट मी टेल यू, इट विल ड्रॉप इवन फर्दर। ओके, एंड इट माइट मॉर्फ इनटू अ एक्सपेंडिंग वेज टॉपिंग पैटर्न। now ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की ये पंप और ये डंप है ना, जिस तरीके का, आप देखो यहाँ से जो पंप हुआ है इनटू द न्यू हाई, लुक एट द ड्रॉपिंग वॉल्यूम्स, और यहाँ से जो डंप हुआ है, लुक एट द राइजिंग वॉल्यूम। बात समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो। दो डबल टॉप हमने बनाए 6 महीने में, इसके ऊपर 550 के ऊपर हम सस्टेन कितना किए, कुछ नहीं। आज हम कहाँ हैं, 550 पे हैं। तो अक्टूबर से लेके अब अप्रैल मंथ आ चुका है, अगर हम वॉर के समय में भी मेटल कंपनी हिंडाल्को
इतने बढ़िया कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम 6 महीने के हाई के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ज़्यादा इन्फॉर्म लोग हैं, उन्हें पता है कि ये भाव जो है ना जस्टिफाइड नहीं है। दैट इज़ व्हाई दे आर सेलिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस को सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे मत लो, पूरे कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लो। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट द हिंडाल्को। अडानी पोर्ट में ऑलरेडी बेरिश है सर। अडानी पोर्ट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हम बुलिश हैं और काफ़ी पहले से बुलिश हैं, कई महीनों से बुलिश हैं। एंड माय फर्स्ट टारगेट 800 इज़ कमिंग। और इसके बाद भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्टॉक क्यों 900, 950, 1000 रुपये जो है जाना चाहिए, और ये स्टॉक जाएगा, ठीक है। And long back, I had made this prediction that Mr. Gautam Adani will, supersede or exceed or leave behind Mukesh Ambani by a big, big margin, not smaller margin. And already he is almost cut to cut. ठीक है, ये दोनों सेम आ चुके हैं. Now the next leg of his wealth, the next breakout in his wealth and stature and clout, and that will come very, very soon. ठीक है. And trust me, he is going to go miles ahead of Mr. Ambani, and he will be a credible fight against the US corporates who are nothing more than a bully. ठीक है, सो ये चीज़ है, इस बात को ध्यान दीजिए। अडानी ग्रुप वेरी पॉजिटिव, बट भाई स्टॉक और बंदा और धंधा, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसी बंदे का धंधा, उसी बंदे का स्टॉक बहुत विचित्र तरीके से बिहेव कर सकते हैं। देर आर पीपल हु आर नॉट नोन टू द स्टॉक मार्केट, बट दे आर मोर वेल्दी एंड मोर पावरफुल, करेक्ट। तो इसी तरीके से बंदे की स्टोरी पे उसके स्टॉक को मत खेलो, स्टॉक को स्टॉक के बेस पे खेलो, इस चीज को भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक, नेक्स्ट क्वेरी है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। सो एक्सिस बैंक इस समय ऊंचाइयों को छूता हुआ, रेजिस्टेंस को काटता हुआ तैयार है 800 के भाव को टेस्ट करने के लिए। सो दैट इज वेयर इट शुड फेस रेजिस्टेंस। सो 800 इज कमिंग, 800 पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करें। सम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस इज कमिंग ओवर देयर। आईसीआईसीआई बैंक, लेट अस टेक दिस स्टॉक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, अच्छा एक चीज बता दूं कि ऊपर ऊपर में किसी स्टॉक में फंसना नहीं, इस बात का ध्यान रहे। आईसीआईसीआई बैंक फॉर टुमारो, देखो ये एक अच्छा सेटअप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में एक मैं रिस्की एक सेटअप देता हूँ, बट ये रिस्की है पहली मैं बता रहा हूँ। सी व्हाट कैन हैपन, वी आर एट द अपर बॉलिंजर बैंड, वी आर ऑलमोस्ट एट अ फ्लिप लेवल, ठीक है। एंड ये एक रेजिस्टेंस था जिसको हमने पहले नहीं सक्सीड कर पाए, अब हम सक्सीड कर चुके हैं। एंड ओवरऑल वी आर राइजिंग। सो इसमें ट्रेड क्या है, ट्रेड ये है कि आईसीआईसीआई बैंक को आप जो है 736 से लेके 727 यानी बाय हियर, यहाँ पे इसे बाय करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस, एक बड़ा स्टॉप लॉस है 700 का। अब ये स्टॉप लॉस नहीं जमता है तो एक दूसरा स्टॉप लॉस आप इसको रख सकते हो 715 का, ठीक है। एंड टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 770, टारगेट होगा 770। आईसीआईसीआई में एक अनफिल्ड गैप है, कहाँ है, 785, ये दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन पे आईसीआईसीआई। सबसे बेहतरीन क्या लेवल होगा, बेहतरीन लेवल होगा कि ये हमें अगली राउंड में, अगली किसी करेक्शन में ये हमें 710, 712 यहाँ कहीं मिले, तो हम इसे 680 वगैरह के स्टॉप लॉस से जो है अगर प्ले करेंगे तो 715 से अगर हम देखें तो ब्रॉडली स्पीकिंग वी शुड टेस्ट 800, 815 लेवल, दैट इज वेयर दिस साइकिल मस्ट गेट ओवर। सो दिस इज वन ट्रेड फ्रॉम 700 टू 800, वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज। अब इसको आप माइक्रो ट्रेड करते हो, मेजर ट्रेड करते हो, एवरेजिंग के थ्रू करते हो, वो आप देख लो, ठीक है। बट इस तरीके से ये शेयर जो है चलना चाहिए। और 805, 815 के भाव पे जब अगली बार आएगा तो आप प्लीज केयरफुल हो जाना, क्योंकि देखो ये कैंडल जो बनी थी इसमें 4-5 महीने पहले की बात है, ठीक है। और इसी कैंडल के टाइम पे मैंने आपको कह दिया था कि बस डब्बा गोल आईसीआईसीआई बैंक, एंड उसके थोड़े दिनों के बाद धराशायी हो गया, ठीक है। सो ऑलवेज नोटिस द बिग कैंडल्स, द बिग वॉल्यूम्स, क्योंकि यहीं पे जो है ना बड़े प्लेयर्स की फुटप्रिंट छुपी हुई होती है। चलिए, इनविजिबल डिप्लोमेट जो हमारे हैं भारत के, उनके लिए इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल को एनालाइज करते हैं। सो आईजीएल दोस्त पूरी तरीके से डब्बा गोल हो चुका है, बट अभी सम बाउंसिंग इज कमिंग फ्रॉम 300 लेवल। फिलहाल मैं स्टॉक को ज़्यादा नहीं तो मैं देख रहा हूँ 406 के भाव पे, बस उससे ज़्यादा नहीं।
and maybe in coming 2-3 months this stock will repair, it will heal, and it will start its own bull market. उस टाइम पे हम इसे देखेंगे। लॉन्ग टर्म बात करूं तो क्वार्टरली जो इसकी कुंडली है मेरे पास पिछले 20 साल से, तो एज पर दैट आई थिंक वी हैव मेड अ बॉटम एट 320 300 लेवल, बट फ्रॉम अ टाइम perspective I think there is still 3 months or 4 months time left. Okay, I would like to see this channel getting completed just like this. Okay, just like this, and then the start of the next bull market which should take the stock towards 1000 rupees. So next time ये stock जब मुझे 300 पे दिखेगा ना, तब इसमें मेरे रडार जो है ओपन हो जाएंगे, because that will be the time to start accumulating this share from a long term perspective of 1000 and maybe much much more. सो ये बात है आईजीएल में। आई होप आप इसे समझ रहे हैं। फिलहाल डेली चार्ट पे टेक्निकल पुल बैक का मामला है, तो 410 वगैरह, इससे ज़्यादा ऊपर तो मुझे नहीं लगता। बट अगर इससे ज़्यादा भी जा रहा है तो अगेन इट कैन गो मैक्सिमम टिल लाइक 450। ओके, बस ये दो लेवल्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आजकल यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। लेट मी ब्रीफ यू गाइस, मुझे भी नहीं पता था ये सब बातें, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, तो स्कैम क्या है? स्कैम ये है कि कुछ जो गुरुजी टाइप के लोग बनते हैं आजकल, दे हैव अ टीम, एंड ये बंदे क्या करते हैं कि ये जो भी अच्छे यूट्यूबर्स इनको दिखते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल को ये कॉपीराइट क्लेम करके कुछ रिपोर्ट वगैरह करते हैं। तो ये सब बातें मुझे भी नहीं पता थी। अब इसमें क्या होता है कि यूट्यूब में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसमें अगर कोई ऐसा क्लेम करता है तो आपकी चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है, एंड देन योर चैनल इज शैडो बैंड, एंड प्लस इफ यू गेट 3 स्ट्राइक्स देन आपका चैनल जो है टेक डाउन कर दिया जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। सो दिस टपोरी लोग, दिस सड़क छाप लोग ये एक नया स्कैम कर रहे हैं कि ये ऐसे बहुत सारे लोगों के चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम करते हैं, और जब आप उनसे बात करोगे तो दे विल ब्लैकमेल यू, दे विल आस्क यू फॉर मनी, बिकॉज इन्हें पता है कि यूट्यूब कोई काउंटर रिप्लाई हमारा नहीं सुनने वाला है। सो वी आर एट मर्सी ऑफ दीज पीपल। ओके, और लीगल वीगल तो आपको पता ही है कि देश में क्या हालत है, ठीक है, तो उसमें कुछ होता नहीं है। सो इन्हें या तो पैसे दो या फिर ये आपका चैनल टेक डाउन कर देंगे। दिस इज वन बिग स्कैम दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, एंड आई होप कि जो बड़े प्रोफेशनल जो यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में, दे शुड टीच दिस गाइज वन बिग लेसन। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लाइक का बटन दबाओ। मुझे पता है कि उसमें बहुत बोरियत लगती है, बट इफ यू डोंट सपोर्ट द चैनल देन दीज गाइज जो अधर्मी है वो तो अपना काम करने वाले हैं। तो या तो आप धर्म सीख जाओ या तो सेकुलर बन के बैठे रहो, ठीक है, और अधर्मी जो है आपके चैनल को टेक डाउन कर लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, द फाइट इज एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेरी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी में इसीलिए मैंने नया चैनल बनाया ताकि उस चैनल को छोड़ दिया जाए फॉर सम वीक्स, एंड लेट अस बिल्ड द न्यू चैनल। अडानी पावर की बात करते हैं। सो अडानी पावर में बुलिशनेस तो ऑब्वियस ही बात है कोई, और अभी 4 दिन पहले भी इसे मैंने क्या कहा था कि कहाँ पे ट्रेलिंग कहा था कि 150 160 पे ट्रेल करो, और अगला टारगेट क्या दिया था? 208। एंड लुक एट द ब्यूटी, so this guy is going through the roof, it is ballistic, and 208 के ऊपर अब देखो, अब ट्रेल करते जाओ इसको। अब ट्रेलिंग कहाँ करोगे मैं बताता हूँ। अब अगली जो ट्रेलिंग है ना, इसे आप कर दीजिए 180 रुपीज पे। अगर आपको 210 पे प्रॉफिट करना है, 225 पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी वेरी फैंटास्टिक लेवल है, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग करो अगर ट्रेल करना चाहते हो, बिकॉज नोबडी नोज कि इन स्टॉक्स का पीक क्या होने वाला है। ठीक है, nobody knows कि इन स्टॉक्स का पीक क्या होगा। सो बट स्टिल 220 शुड बी गुड रेजिस्टेंस फॉर नाउ। इफ यू वांट टू ट्रेल देन इसे 180 रुपीज पे आप ट्रेल कर सकते हो। गोदरेज प्रॉपर्टीज is the next stock, and we have crossed the 1 hour time limit for live streaming. We are almost 10 past 1 hour, so I will wind up. So Godrej Properties, जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 1770 1780 ये रेजिस्टेंस है, सो आई थिंक इट कैन गो टिल देयर। उसके ऊपर फिलहाल मैं स्टॉक को ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ, एंड प्रॉब्ली वी विल टेक दिस स्टॉक इन द नेक्स्ट राउंड। सो फॉर द टाइम बिंग 1780 is a resistance, that is where you should book.
पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट क्वेरी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। सो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में इस समय एक अच्छी पुल बैक आई थी, हालांकि ये पुल बैक थोड़ा और नीचे आता तो अच्छी बात होती, बट इट हैजंट कम दैट मच डाउन। सो राइट नाउ इट्स ओके, what I will suggest is just keep a stop loss of 2350. Okay, and let's hope to get this breakout, because once it gives a breakout about this, then you can very well reach till 2650. That is where you should book. In fact, that is where you must book. Okay, because this stock, I think it has almost peaked out, and it is in the distribution process. So 2650 के ऊपर मैं स्टॉक को देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, एंड राइट नाउ 2350 आपका ट्रेलिंग होना चाहिए। ओके, इसमें सबसे बेहतरीन लेवल तो होगा जब ये समवेयर हियर, जब ये 2250 के आसपास आए कभी इन फ्यूचर, दैट विल बी अ वेरी healthy level to buy for almost a short move till 2650. So that's the update. टाटा मोटर्स पे एक क्वेरी है, इसे ले लेते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो टाटा मोटर्स की बात करें तो इस पे हम बुलिश हैं, ठीक है, एंड इसमें आप बुलिशनेस को मेंटेन रखेंगे, एंड आई थिंक टाटा मोटर्स इज राइट फॉर 480 रुपीज द पेंडिंग गैप टारगेट, एंड आई थिंक इन अ couple of days it should give you a breakout. So watch out for this stock. Okay, and I can give you a risky trade in this, that you know, इसे बाय करिए 420 के नीचे, 418 के स्टॉप लॉस से आप बाय करिए। फर्स्ट टारगेट इसमें होगा 460 और दूसरा टारगेट होगा 480। ओके, ये एक छोटा ट्रेड बता रहा हूँ। ओवरऑल जो है इसका लॉन्ग टर्म एंड ऑल दोस थिंग्स, आई हैव ऑलरेडी सेड कि ये स्टॉक बहुत ही बम्पर है और 620 का मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। सो ये हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है सिंजीन, सिंजीन इंटरनेशनल। दोस्तों अब वाइंड अप करेंगे सेशन को। तो सिंजीन इंटरनेशनल दोस्त इस समय एक सॉर्ट ऑफ डेड काउंटर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें हम जो है 550 से ट्रेल करते हैं। लेट अस होप कि ये इसमें काफ़ी कॉइलिंग तो हो चुकी है मूविंग एवरेजेस की, और ये ब्लास्ट तो करना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस होप कि 720 आए, 720 आएगा तो एग्जिट करना है, और अभी 550 के साथ इसे जो है ट्रेल करना है। आई थिंक एक मूव तो डिजर्व करता है बंदा, आई थिंक एक मूव आना चाहिए। इट्स अ गुड लेवल। Okay, and I think we should expect this move. 720 is a reasonable expectation. होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट है NHPC। NHPC फर्स्ट टाइम ये स्टॉक हमारे शो पे लिया जा रहा है। NHPC देखो एक लॉन्ग टर्म में फॉलिंग वेज पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एट बेस्ट अगर कोई अपसाइड आती है तो ये 30 रुपये 35 रुपये से ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। सो ये फिलहाल 10-20 दिनों के लिए ये व्यू है। जब ये स्टॉक लाइक 32 रुपीज को क्रॉस करेगा ना, फिर ये स्टॉक में बहुत जबरदस्त एक इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेरी है पावर ग्रिड, दैट इज द नेक्स्ट क्वेरी। पावर ग्रिड की बात करें तो वेरी हाई वॉल्यूम्स के साथ एक फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकआउट है, थोड़ा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, बट आई थिंक दिस स्टॉक, इफ आई चेक द हायर टाइम फ्रेम, let me see the higher time frame chart, and the higher time frame chart suggest lot of bullishness है। तो 250 का टारगेट इसमें रखिए, ठीक है। स्टॉक अभी 225 से है, तो 240 245 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना, बिकॉज यू नो वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस आल्सो, सो आई थिंक दैट शुड बी गुड लेवल। प्रॉफिट बुकिंग एक बार इसमें करिए आप, और फिर गिरावट पे वापस से बाय करेंगे। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर जो है ये टेक ऑफ करना शुरू कर रहा है, और 100 रुपये की स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। अगली राउंड में जब ये 140 150 के आसपास आए तो एक बार हम इसे रीचेक करेंगे, ठीक है। इस स्टॉक में एक अच्छी चीज़ भी है, खराब चीज़ भी है। अच्छी चीज़ क्या है कि इट इज़ एट अ गुड सपोर्ट। खराब चीज़ क्या है कि अगर ये अगले राउंड में 150 को क्रॉस नहीं करता है तो ये स्टॉक निश्चित तौर पे गिर के जाएगा, और ये स्टॉक 63 रुपीज़ को हिट करेगा। क्यों, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए 100 रुपया अपना होल्डिंग प्राइस रहेगा, 100 रुपये स्टॉप लॉस होंगे, और 150 पे देखते हैं। लेट अस सी, 150 एक बार क्रॉस कर ले तो फिर स्टॉक सुपर बुलिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है
लेट मी सी, आई कैन सी मारुति, इंटरेस्टिंग। मारुति किसी ने पूछा नहीं था अभी तक, तो मारुति सुजुकी एक बार चेक करते हैं। सो मारुति has started the take off। ऑटो सेक्टर जो है देखो बुलिश है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। सो मारुति में अगर कोई डिप आए या अगर आपने बाई किया, आई थिंक मारुति यू कैन बाय इफ एनी डिप कम्स टुवर्ड्स से 7200, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 6900 का स्टॉप लॉस में रखना चाहूंगा। सो wherever you buy 72, 71, 73, just keep in mind 6900, that is your stop loss. And the next target is 8400, the last swing high which was made on a very high volume. And as you can see, again at a similar level we had got a very high volume, so somebody is selling, somebody is selling at 8400, because ये दो जो वॉल्यूम्स हैं ये हमारे जैसे लोगों से नहीं बनता है, right? So somebody is selling, so keep this as a target 8400, buy somewhere near 72 for 8400 is a target and keep योर 6900 एज अ स्टॉप लॉस। चलिए एक आखिरी क्वेरी, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट का लाइव स्ट्रीम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो गया। एक हम ले लेते हैं अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइजेस हैज़ ऑलरेडी मेड अ न्यू हाई, और बहुत ज़्यादा इस पे सब हम बुलिश थे, इफ़ यू रिमेंबर अडानी पूरे ग्रुप पे। सो इसमें मैं एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, डू वन थिंग, जस्ट ट्रेल करते जाओ, ठीक है? एटलीस्ट प्रीवियस डे बॉटम पे ट्रेल करते जाओ, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी हैं, दीज आर द प्रॉफिट बुकिंग जोन बाय देमसेल्फ, एज यू कैन सी। बट बिकॉज this is a parabolic group and you may never know to what extent it can rally, that is why I suggest to trail. And if I draw the channel perfectly, if I draw the channel perfectly, you should see 2120 hitting very very soon, that is your target 2120। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जिन लोगों की क्वेरीज नहीं ले पाया, आई एम सो सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एंड वी कैन टेक दोज क्वेरीज टुमारो। जिनकी क्वेरीज मैं ले चुका हूँ, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कैसा चला स्टॉक। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक्स हैं, वहाँ भी जुड़ जाइए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, नेक्स्ट ट्रेनिंग है अप्रैल 16 और 17 को, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप सपोर्ट है 3 मंथ्स का। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक एंड टेक केयर, गुड नाइट, जय माता।